Hello students. Now today we will discuss the class 10th test series of science paper, that is set A, and specially I will be dealing with the physics part only. Okay, so in this set, in section A, the first question was question number 13. It was a MCQ. So the question is, resistance whose VI graph is given below. Okay, so we have to find the resistance of this graph, VI graph. Now you can see in this graph, okay, that on y-axis potential difference has been given, okay, and on x-axis current is been given in amperes. Okay, so obviously बात है, अब हम यहाँ पर इस VI ग्राफ का स्लोप निकालेंगे ताकि हमें इस ग्राफ का रेजिस्टेंस मिल जाए। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे आप जानते हो, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो यहां पर अभी हम लोग इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जैसे आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, y2 जो वैल्यू है दैट इज 9 वोल्ट, y1 जो है दैट इज 0 वोल्ट। सिमिलरली x एक्सिस में अगर हम देखें तो आपका x2 हो जाएगा 15 और x1 हो जाएगा आपका 0। तो हम इन सारी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम यहां देख भी पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ओके, तो हमने वैल्यूज इसी फॉर्मूले के अनुसार पुट किया है। R इज इक्वल टू y2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इज 9, y1 का वैल्यू इज 0, x2 का वैल्यू है 15 और x1 का वैल्यू है 0। ओके, so 9 minus 0 that becomes 9, 15 minus 0 that becomes 15, and further it gets reduced to 3 by 5 ohm. So the correct answer of this question is B, that is 3 by 5 ohm. Okay, so this completes our first question. Now next question in section A is once again a MCQ. The question is, the nature of magnetic field lines passing through the center of current carrying circular loop is. Okay, so आपको अगर डायग्राम याद होगा, जैसे यहां पर देखिए मैं एक सर्कुलर लूप बना रहा हूं, दिस इज द कार्डबोर्ड ओवर हियर। इस सर्कुलर लूप को हमने कनेक्ट कर दिया बाय की, सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं जैसी स्विच को ऑन करता हूं तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Okay, so you can place iron filings on the cardboard. You will see after the current has been switched on, magnetic fields will be produced in form of concentric circles, and at the center of the loop it makes a straight and parallel lines. Okay, so the nature of magnetic field through the center of current carrying circular loop is you can see over here it's a straight line. So the correct option of this question will be D, straight line. Okay, now let us proceed to the next question of section A. That's also an MCQ, question number 15, but it's a simple numerical over here. Okay, so let us start. A cylindrical conductor of length L, so L1 has been given small l, and uniform cross section area A, so A1 has been given A, and resistance has been given, R1 has been given R. Okay, then comes the another conductor और उसका लेंथ दिया है L2 has been given twice L, R2 once again it has been given R only, and we have to calculate A2. Okay, so let us start with the formula. R is equal to rho L by A. So we'll make the formula in terms of area because we have to calculate area too. So this formula becomes A
this formula becomes A equal to rho L by R. Okay, so this becomes the formula. Now let us start with case 1. Case 1 will become A1 is equal to rho L1 R1. Similarly, case 2 becomes A2 rho L2 upon R2. Now you have to divide 2 by 1. Okay, because we have to calculate A2. So here it becomes A2 upon A1. So A2 becomes rho L2 R2 into, now it gets reciprocate, A1 becomes reciprocate R1 upon rho L1. So over here rho gets cancelled. ठीक है, we'll substitute the values. A2, A1 की जगह we can write A, L2 की जगह we'll write L, R1 की जगह R, R2 की जगह भी R और L1 की जगह हम लिखेंगे L. L2 is twice L. Okay, L2 has been given twice L. So we can cancel out many things over here. So we can cancel RR, LL. Okay, so now cross multiply this A over here. So your new area becomes twice of A. Okay, your new area becomes twice of A. So the correct option over here goes option number C, 2A. Got it? But this question has to be solved very soon or fast. Okay. Now let us come to next question, question number 16. It's an easy question. It is also an MCQ, theoretical question. If the current varies periodically from 0 to maximum value, okay, we'll draw a graph over here. This is 0 to maximum value, and then back to 0, and then reverses its direction in the same direction. Okay, so I think so we have already studied. So this kind of way is known as alternating current or AC. So the correct option for this question will be option number B. Okay, this is an AC wave or alternating current. Okay, now let us come to the last question of section A. Now this question number 20 is an assertion reason question. Okay, so the assertion is given as steel core is used as an electromagnet. Okay, basically we do not use steel core for electromagnet because steel is having a permanent nature. Okay, steel is generally used for making permanent magnets, and electromagnets are basically temporary magnets. Whenever the current is started, it becomes a magnet, and whenever the switch is off, it demagnetizes. But steel does not. Okay, steel is used for permanent magnet. So the assertion is false, and if we go by option, there is only one option where assertion is false. Okay, yeah, you can see assertion is false. So our correct answer will be D. The assertion is false, but the reason is true. Okay, first statement is also false. So correct option is D. So this completes the section A of set A and physics paper. Okay, now let us proceed to section B of this set only. Here the question number is 25. This question carries 2 marks. Okay, now name the 4 parts labeled as A, B, C in the given diagram and write their functions. So here you can see A is pupil. Okay, A is pupil, you can see over here. B is ciliary muscles. Then C is iris. Yes, you can see C is iris, and D is retina.
So we have identified all the parts of the human eye. So now individually we'll write all the functions. जैसे pupil, it controls the and regulates the amount of light entering the eye. Ciliary muscles, these muscles helps to modify the curvature and thereby the focal length of the eye lens to focus the image of the object on the retina. Then comes iris, it controls the size of the pupil. Retina, it's a real inverted and diminished image of the object and it is formed on it. Okay, a real inverted image is formed on the retina. It's basically the screen of the eye. So this was the simplest question. Okay, now here we end the section B of this set, physics part. Now let us proceed to section. Okay, we have one more question in OR. 25th question is basically having two questions. Okay, this is OR 1. So the second part of this question is the near point of hypermetropic eye is 50 centimeters. So this is basically given as V, that is the image distance. Okay, hypermetropic eye. So whenever the hypermetropia comes, it is understood that object distance is always u is equal to minus 25 centimeter. I repeat, whenever the word hypermetropia comes, object distance always becomes minus 25 centimeter. Okay, and this becomes, near point becomes the V. So V is given as minus 50. So हमें पूछा है what is the nature and power of the lens. So very simple. Nature of lens means whether it is convex or concave. Okay, so हमें U दिया है, V दिया है, so obvious सी बात है, we'll calculate the F part, that is focal length. So by using lens formula, you can see over here 1 upon F is equal to 1 upon U, 1 upon V minus 1 upon U. We'll substitute the values. Okay, so 1 upon F, that becomes, we'll substitute the value. Finally the F comes out to be plus 50 centimeter or plus 0.5 meter. Okay, since the focal length of the lens is positive, so this lens must be convex. Okay, so we have calculated the focal length as well as the nature of the lens, that is convex lens. We have to also calculate the power of lens. So power is equal to 1 by F, that is expressed in meters. We'll put the value 1 upon 0.5. So our final answer comes out to be plus 2 diopter. Students, remember one thing. In light chapter and human eye numericals, we have to compulsorily write positive signs. Otherwise, your half mark will be deducted from it. If you are not writing the plus sign, I repeat, plus sign is not a mathematical symbol. Actually, plus sign denotes something. Plus denotes what? It denotes whether that image will be real, virtual, or so and so. Okay, so you have to write basically that plus sign. Now let us come to section C. Now section C consists of 3 marks question. Okay, and there are 3 questions of physics, that is question number 30, 31 and 32. Let us start with 30th question. It's once again a numerical. A real image 1/5 the size of an object is formed at a distance of 18 centimeters from a mirror. Now a real image has been formed. So everyone knows it's a mirror. Okay, so this mirror will be concave mirror, because only concave mirror forms the real images. Okay, and for concave mirror we already know that F and R are both negative. Got it? concave mirror के लिए F और R दोनों ही नेगेटिव होता है. Now उसके बाद ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इमेज, रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन कॉन्केव मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए आपका V क्या रहेगा बच्चों, माइनस रहेगा. ठीक है, और जो 1/5 दिया है दैट इज गिवन एज आइदर यू कैन राइट मैग्निफिकेशन. ठीक है, मैग्निफिकेशन यू कैन राइट 1/5, दैट फाइनली देन इट विल बिकम
size of the image upon size of the object. Okay, so you can write this like this also. H of image is equal to 1/5 of H of object. So magnification, so we are going to start. We have to calculate the focal length, we have to calculate the nature of mirror. We have already determined the nature of mirror. Okay, so focal length. Now from magnification we are going to calculate first m is equal to minus v by u. M is minus 1 by 5. We'll substitute the value of v over here, that is minus 18. So minus 18 upon u, okay, is equal to minus 1 by 5. Here this minus sign and this minus sign gets cancelled. ठीक है, और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब आपका देखो u आ जाता है माइनस 90 सेंटीमीटर. ओके, और एक बार बच्चों आपके पास u आ गया, v आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है बाय यूजिंग लेंथ फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ. सो हियर यू आर सीइंग, ठीक है, हमने यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दी है एंड सॉल्व इट. तो हमारा जो फोकल लेंथ आता है दैट इज माइनस 15 सेंटीमीटर. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट यू हैव टू पुट a positive or a negative sign in front of a number, okay, in light chapter and human eye chapter. Okay, now since the focal length is negative, therefore the spherical mirror is a concave mirror. Got it? Now this question also has B part. Now name the kind of lens that can form real inverted and diminished image. So real image can be formed by which lens? Convex lens. Okay, so the correct answer is convex lens. And second, real inverted and enlarged image. Yes, the second answer will be also convex lens, because concave lens is not going to produce real image. Okay, so convex lens will produce the real image, either diminished or magnified. Okay, so this completes the 30th question. Now next question, 31. I think so it's a very easy question. You have to draw the diagrams. So first diagram, draw the ray diagram of a convex mirror. Okay, it's a convex mirror. First, strikes at the pole making an angle theta with the principal axis. So here you are able to see the first diagram. ठीक है, थीटा से आ रही है तो लाइट थीटा से चली जाएगी. दिस इज बेसिकली योर रूल नंबर 4. ठीक है, जो एंगल से आएगी वो एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. देन नेक्स्ट, a ray of light incident on a convex mirror is directed towards the principal focus. So आप यहां देख रहे हैं, यहां पे देखिए लाइट जो है वो फोकस से आ रही है. सबको पता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर इंसिडेंट it will get reflected and it will move parallel to the x axis. यानी फोकस से आई है और पैरेलल चली जाएगी. That's rule number 2. Then last is parallel to principal axis. Okay, it's parallel to principal axis. तो ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों. This is rule number basically 1. Parallel आई है, it will appear to diverge from focus. Since it's a convex mirror, it will not form the real image, so it will appear to diverge from the focus. Okay, so you have to draw the diagram. Okay, while drawing the diagram, beta strictly do not use eraser and use HB lead pencil, that is only 0.5 mm. Please do not use 0.7 mm, and please try to avoid eraser or overdrawing. Okay, and make arrows. Always draw arrows. If you are not drawing the arrows, okay, if you are not drawing the arrows in the diagram, you will get 0 बच्चों. ठीक है. Now let us come to the last question of section C. That is question number 32. It is having 2 questions. So first question is a theoretical question taken from magnetic effect. What is overloading and state the cause of overloading. So overloading is basically if the current drawn by many electrical appliances connected to a single socket exceeds the current rating of the wire, the entire circuit or part of the circuit gets heated and cause even fire. This is known as overloading. Okay, so we have to describe the causes also.
The first cause is accidental hike in the supplied voltage, या connecting too many appliances, या damage in the insulation of the wire, some fault in the appliances, or direct contact between the live and the neutral wire. Okay. Now the second question for question number 32 is, how can the strength of the magnetic field produced by current carrying solenoid can be increased? Okay, so we know all these things. सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे बच्चों? By increasing the current, because magnetic field is directly proportional to current. Second, we'll increase the number of turns in the coil. So magnetic field is also directly proportional to number of turns. And last, that magnetic field depends on nature of core material. Nature of core material. So only two materials are allowed, that is soft iron and steel core. Okay. So using a soft iron core within the solenoid. Okay. So it was a very easy question. So this completes section C. Let us come to section D. Only one question is there. This question carries 5 marks, and this question is taken from electricity chapter. It is basically based on power, electrical energy, and we have to calculate the electric bill over here. So electric geyser consume 2.2 unit of electrical energy per hour of its use. Okay, it's designed to work on the main voltage of 220 volt. तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, we have to calculate what's the power rating. Okay, this is very important term, power rating. So using power is equal to what? Electrical energy upon time. Power is energy upon time. You know this formula. So we'll put the values, that is 2.2, it is given units, that is 2.2 thousand watt hour. So this 1000 watt hour becomes kilowatt hour. Okay, 2.2 thousand watt hour divided by 1 hour, because energy was given per hour. So the power comes out to be 2200 watt. So how do we write the rating? In rating we write first the power and then we write the voltage. So this is known as power rating. Okay, so this was the important part. Second was the B part. What is the current flowing through this device when it is connected across the mains? So second part is given over here. I is equal to P upon V. P is 2200, V is 220 volt. So current comes out to be 10 ampere. Okay. C part, what is the resistance of this device? So here you can see C part, resistance is equal to V square by P. V square, that is 220 into 220, ठीक है, divided by 2200. So यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एक 22 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 22 ओम. ठीक है. D part, does the resistance of this device remains constant during operation? The answer is no, not at all. Resistance increases with the increase in temperature. Got it? And finally we have to calculate the cost of energy consumed. So rupees has been given per unit, that is 6 rupees. Okay, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, the number of electrical unit, cost per unit, that is 2.2 and rupees 6. So multiply, you'll get 13.2 rupees. Got it? So this completes the section D part. Now let us start with the section E part, that is case based question. Okay, it carries 4 marks. Okay, so here the paragraph has been given. This paragraph is based on refraction of light. Okay, you very well know the theory. So we'll directly go with the question part. First question: how do the light bend in one of the following ways when they pass through glass from air? Okay, so already we know that glass is a rarer medium. Okay, glass is a rarer medium. Sorry, glass is a denser medium.
Glass is a denser medium. Okay, I'll rub this. So glass is a denser medium and air is a rarer medium. So light is moving from when they pass through glass from air, when they come to glass from air, in air to glass आ रही है, so rarer to denser. So obviously बात है, it will bend towards the normal. Okay. Second question. What happens to the frequency of light when the light travels from one medium to another? So the frequency, the only physical quantity which remains constant. Whatever happens, the light, whether it comes from rarer to denser or denser to rarer, this only one quantity remains constant, the frequency remains constant. Okay. Then comes next question, that is having or option. Either you can solve any one of them. The question is at what angle of ray of light hits the boundary of medium B so that no bending of the light occurs. ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं मीडियम B में अगर हम चाहते हैं कि बच्चों देखो लाइट बेंड ना हो, तो उसके लिए हमारी जो लाइट है वो नॉर्मली आना चाहिए. दिस इज द नॉर्मल पार्ट, दिस इज द नॉर्मल पार्ट. ओके, तो लाइट सीधा आ रही है और सीधा जाती है. ठीक है, सो यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस पे आपकी लाइट बेंड नहीं हो रही है. सो व्हेनेवर द लाइट इज नॉर्मली और परपेंडिकुलरली द लाइट डज नॉट बेंड. गॉट इट. एंड इसका और क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास एंड इनटू वाटर. ठीक है, या फिर हाउ डू द बॉटम ऑफ अ पूल फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स ड्यू टू लाइट रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो जैसे हमें पता है ऑप्टिकल जो वाटर है दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों 1.44 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. तो वाटर बन गया रेयर और ग्लास बन गया आपका डेंसर. ठीक है, सो लाइट ट्रेवल फास्टर व्हेन इट पासेस थ्रू वाटर. गॉट इट. एंड रिफ्रैक्शन कॉजेस द पूल बॉटम टू अपीयर शैलोअर देन एक्चुअली इट्स. गॉट इट. तो दिस वाज द 10th science set A paper. Okay, and I have dealt with only the physics section. Okay, so thank you. डियर स्टूडेंट्स, हम टेस्ट सीरीज का साइंस का सेट ए डिस्कस कर रहे हैं. पहले हम केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी. तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जाएंगे सेक्शन ए पे. अब यहां हम एमसीक्यू देख रहे हैं. अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश एग शेल. ओके, जब भी क्रश एग शेल है, इट गिव्स अ गैस दैट टर्न अ लाइम वाटर मिल्की. ओके, अब एग शेल जो है ये सॉल्ट है बच्चों. And whenever this salt react with a what acid, that is HCl, it release carbon dioxide gas, and that's why lime water turns what milky. Therefore our answer is what HCl. Okay, that is option B. अब हम सेकंड इस पे जाते हैं. Which of the statement about the reaction below incorrect. बच्चों इसके तरफ ज्यादा फोकस करना. इनकरेक्ट. ओके, अब इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों. ओके, अब पहला ही है लीड गेटिंग रिड्यूस. बच्चों ये हो ही नहीं सकता. ओके, और सेकंड अगर ऑप्शन देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ व्हाट ऑक्सीडाइज. ओके, ये जो है ये इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन दैट इज ए 1 and 2 इज अ व्हाट इनकरेक्ट. तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ओके, देन थर्ड एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट. 2 एलिमेंट को कंबाइन करना है. तो बच्चों सीधा नजर जाता है ऑप्शन बी पे. यहां पे सोडियम और ऑक्सीजन है विच फॉर्म सोडियम ऑक्साइड.
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब फोर्थ एमसीक्यू देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो जनरली जब एसिडिटी होती है तो वी आर टेकिंग अ व्हाट, एंटासिड। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब फिफ्थ वाला देखो बच्चों, फूड कैन आर कोटेड विथ अ टीन नॉट विथ द व्हाट, जिंक। तो बच्चों हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। ओके, क्यों ऐसा है? तो सिंपल, जिंक इज अ कॉस्टलियर देन द टीन। ये तो नहीं हो सकता भाई, टीन कॉस्टली है। जिंक हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई फूड को स्टोर करना है तो मेल्टिंग पॉइंट का कुछ लेना देना नहीं। बट सी ऑप्शन देखो बच्चों कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द टीन, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, इसीलिए हियर इज द ऑप्शन सी इज अ व्हाट, अ करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 6 एमसीक्यू देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। द सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ नहीं हो रहा है, हमारे को देखना है कि ए रिएक्टेंट कौन है। अगर बच्चों मैं सोडियम क्लोराइड को ओके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज अ सोडियम सल्फेट। ओके, एंड विच गैस इज लिबरेटेड आउट, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन है। अब यानी रिएक्टेंट ए कौन है बच्चों, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन कहां कहां है, बी में और सी में। अरे हमारा आंसर आइदर बी हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। अब ये कब तय होगा कि बी और सी क्या है? तो देखो बच्चों, यहां पे बी आयरन क्लोराइड फॉर्म करना है, बी जो है ये आयरन होना जरूरी है, और अमोनियम क्लोराइड अगर फॉर्म करना है तो सी क्या होना चाहिए बच्चों, NH3। ये ऑप्शन में सी में है NH3, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब सेवंथ वाला अगर देखेंगे तो इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप यहां देखते हो, ओके, तो हमें इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब इथेन बोला तो C2H6, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ बॉन्ड देखो बच्चों, ये 3 3 6 और ये 7, यानी कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 7। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, assertion एंड रीजन। अब ये क्या कह रहा है, assertion, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन द लीड नाइट्रेट हीटेड। यस, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है। ओके, तो ये करेक्ट है, assertion इज करेक्ट। रीजन देखो बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नो डाउट बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो आंसर ए इज करेक्ट। अब बच्चों सेक्शन बी देखो, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब रेन वाटर जो है, ओके, जनरली रेन वाटर जो है इसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, और जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो दे फॉर्म अ सल्फरस एसिड। ओके, अब ये जो एसिड है ना, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो इट प्रोड्यूसिंग द आयन, विच आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन। ओके,
बट डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, और प्योर वाटर कभी आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसीलिए बच्चों, रेन वाटर कंडक्ट द व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल वाटर डू नॉट। ओके, अब 21, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बच्चों, यहां पे आपको दो यूजेस पूछे हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा, ओके, is a used as a raw material in the preparation of glass, soap and paper industry. It is also used as a cleaning agent. It remove the permanent hardness of water. हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है, और ये लेबोरेटरी में एज ए रीएजेंट करके भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा इज यूज एज अ मेडिसिन, एज अ एंटी एसिड। ओके, अभी हमने एमसीक्यू लिया था इसका। इट रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। देन इट इज अ कंस्टिट्यूट ऑफ द बेकिंग पाउडर, जो बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। देन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो कोई भी आपको दो यूजेस लिखना है। ओके, समझ में। देन बच्चों, सेक्शन सी, बच्चों ये 3 मार्क्स का सेक्शन होता है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना पड़ता है आंसर को। देखो, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, जब आप इसका आंसर देंगे ना तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, तो हमको पता है बच्चों कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट होता है और 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। बट कॉम्बिनेशन में उसके उल्टा होता है, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए अपोजिट है। तो यहां 1 मार्क मिल गया। अब बच्चों, राइट इक्वेशन फॉर दिस, तो आप हर एक का आपको एक एक इक्वेशन लिखना है। अगर आप डिकम्पोजिशन का एक इक्वेशन लिखते हो तो यहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट गेट हीटेड टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड आउट। ओके, या लेड नाइट्रेट का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में तो बहुत सिंपल है बच्चों, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा ये 3 मार्क का डिवीजन है। ओके, और इक्वेशन जब लिखते हो तो उसके स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप स्टेट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क डिडक्ट होगा बच्चों। ओके, देन ये 3 मार्क का देखो बच्चों, 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई। तो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम रफ में या ऐसे ए बी सी डी और ई लिख देने का। ओके, व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके, तो इसका पीएच वैल्यू ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है। ओके, अब विच सॉल्यूशन न्यूट्रल, तो बच्चों सीधा सीधा है। ओके, कि यहां पे ए सॉल्यूशन, ओके, अब यहां पे डी इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7। ओके, बाद में स्ट्रांगली अल्कलाइन। ओके, समझ में। तो यहां पे हियर इज सी, अगर देखेंगे तो उसका पीएच वैल्यू से 11 है तो वो स्ट्रांगली अल्कलाइन हो गया। ओके, समझ में। बाद में स्ट्रांगली एसिडिक, अगर बच्चों आप देखेंगे तो बी का वैल्यू 1 है तो ये स्ट्रांगली क्या होगा, लोअर पीएच है तो वो स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। बाद में वीकली एसिडिक, देखो बच्चों यहां पे 4 है, ए का वैल्यू 4 है। ओके, तो ये ए वीकली एसिडिक हो जाएगा। और वीकली अल्कलाइन, तो ई का वैल्यू देखो बच्चों 9 है। ओके, तो ये वीकली क्या हो जाएगा, अल्कलाइन। तो सिंपल, आपको रफ में ये ऐसा लिखना पड़ेगा तो जजमेंट होगा। ओके, तो पीएच वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करके हम उसका निकाल सकते हैं। ओके, समझ में। तो इस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों यहां पे ओके, आपको ये 5 दिए हैं। ओके,
और 3 मार्क्स का ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे ये लिखेंगे तो इसमें हाफ मार्क मिल जाएगा और हर इस पे आपको हाफ हाफ मार्क मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। तो यही मोलारिटी दिया है, अब पीएच वैल्यू का ये यही पे दिया है। अब सेक्शन डी होता है बच्चों। अब सेक्शन डी देखो, यहां पे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो बच्चों ए जो है ना ये 3 मार्क का है। ओके, अब इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम। देखो इथेनॉल treated with sodium, it form a sodium ethoxide and hydrogen gas liberated out। ओके, इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। बाद में here is ethanoic acid is reacted with the sodium hydroxide। देखो बच्चों, ethanoic acid react with the sodium hydroxide and sodium ethonate is formed and along with water, that is a esterification का रिएक्शन है। ये लिखते हो तो 1 मार्क मिलेगा। इथेनॉइक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों यहां पे देखो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट। कुछ नहीं करना बच्चों, यहां पे जैसे ये हाइड्रोजन है, इसको सोडियम डिस्प्लेस करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ओके, इस रिएक्शन में भी सेम है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये सोडियम डिस्प्लेस करता है और ये हाइड्रोजन OH के साथ चला जाएगा तो वाटर बन जाएगा। ओके, और इस रिएक्शन में भी इजी फंडा है बच्चों कि ये हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस करता है तो सोडियम इथोनेट और यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, और वाटर मिल जाता है। तो तीनों इक्वेशन को आपको बैलेंस करके लिखना है, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे। अब बी क्वेश्चन देखो, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द 2 कंपाउंड फॉर्म व्हेन द ईस्टर, दिस इज द ईस्टर, अंडरगो सैपोनिफिकेशन। अब जब ईस्टर का सैपोनिफिकेशन होता है तो इट ट्रीटेड विथ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो अगेन क्या होगा बच्चों, ये जो है ना, ओके, CH3CH2, ओके, इसको ये OH के तरफ लेके जाना, यानी क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल। ओके, और हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम इथोनेट, क्योंकि ये सोडियम इस जगह पे चला जाएगा। ओके, तो हमको ये आपको 2 मार्क देगा, इसको पहचानना है और इसको पहचानना है आपको। तो इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। ऐसे मिला के 5 मार्क है बच्चों, और इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में। ओके, और बाद में हम 1 और 2 लिखेंगे। अब इसका और देखो बच्चों 34 का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड P इज कंस्टिट्यूट अ व्हाट, वाइन। अब ये आ गया वाइन। अब P अगर वाइन है, ओके, तो वाइन में क्या होता है, अल्कोहल, तो दिमाग की बत्ती बिल्कुल चालू हो जाएगी, यानी 100% P क्या है, इथेनॉल। ओके, अब P रिएक्टिंग विद द एसिडिफाइड, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म अनदर कंपाउंड। ओके, तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है। तो इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ओके, तो इथेनॉइक एसिड और क्या फॉर्म होता है, वाटर, तो हमको क्यू मिल गया। ओके, अब वो क्या कहता है, व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू द क्यू, ओके, अ गैस आर इज इवॉल्व विच प्रोड्यूस द पॉप साउंड। ओके, तो आर पॉप साउंड अगर है तो पॉप साउंड दुनिया में सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है, तो आर क्या हो गया, हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे क्या बोला है बच्चों, आइडेंटिफाई PQR एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो हियर इज, ध्यान में रखना, P पहचान लिया तो आप सारे रिएक्शन को इजीली पहचान सकते हैं। तो यहां पे P इथेनॉल है, Q इथेनॉइक एसिड है, और R ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। तो दिस वन इज अ करेक्ट। तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि P इथेनॉल है, Q इथेनॉइक एसिड है और R हाइड्रोजन गैस है। ओके, अब सेक्शन E बच्चों, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा संभल के सॉल्व करना इसको।
देखो बच्चों, इसको पढ़ना भी पड़े। अ स्टूडेंट टुक अ 4 मेटल PQRS and carried a different experiment to study the properties of metal. अब इसके ऑब्जर्वेशन दिए, ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विद द नाइफ एक्सेप्ट मेटल आर। तो कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं विच इज इजीली कट बाय द नाइफ। मेटल P कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड M2O3 बच्चों। यानी ऐसा ये मेटल है कि जिसकी वैलेंसी 3 है। ओके, और जो दोनों के साथ रिएक्ट होता है यानी एम्पोटेरिक है। तो एम्पोटेरिक दो ही है हमारे पास। ओके, एक कौन है? जिंक, और दूसरा कौन है? एल्यूमिनियम। ओके, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन विथ वाटर। P did not react with water with cold or hot water but react with steam, यानी ये एल्यूमिनियम हो सकता है। ओके, Q reacted with hot water and metal start floating। ओके, हॉट वाटर के साथ कौन है बच्चों? मैग्नीशियम। ओके, R reacted violently with the cold water। violently दो ही होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, और S did not react with water at all। ओके, तो जनरली कॉपर ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट होता है। अब ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द गिवन मेटल नेम द फॉलोइंग मेटल्स विच नीड टू बी स्टोर्ड अंडर केरोसिन। ओके, समझ में? तो ये वायलेंटली जो रिएक्ट होता है ना, तो वो मेटल क्या होगा बच्चों? आर, आइदर सोडियम नहीं तो पोटेशियम। मेटल विच फॉर्म अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो बच्चों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला कौन है? पी। ओके, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज व्हाट? बेस। ओके, समझ में? क्योंकि एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जो स्टीम के साथ होता है। तो हमारा पहला आंसर मिल गया हमको, ए का आंसर होगा आर। और बच्चों यहां पे मेटल का नाम नहीं लिखना है, जो PQRS है ना उसमें से ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो मेटल आर होगा और बी का होगा मेटल पी। अब वो क्या कह रहा है? राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ 4 गिवन मेटल्स। ओके, अब बच्चों हमको रिएक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। ओके, अब जो कुछ कभी भी रिएक्ट नहीं होता, ओके, समझ में आया, तो वो होगा एस। ओके, बाद में पी, बाद में क्यू, और बाद में कौन आएगा? आर। ओके, समझ में आया? क्योंकि आर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद में कौन आएगा? क्यू। ओके, दैट इज अ कैल्शियम। ओके, देन उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? पी। ओके, समझ में आया? जो स्टीम के साथ, और सबसे कम कौन आएगा? एस। यानी एस is less reactive than the P, P is less reactive than the Q, and Q is less reactive than the R. This is our answer. Okay. अब यहां पे इसका और जो है, ओके, तो लास्ट क्वेश्चन का और है ये, when a metal X is treated with cold water, okay, it gives the base Y with the molecular formula XOH, जिसमें X का एटॉमिक मास दिया है बच्चों। अब X का एटॉमिक मास अगर 40 दिया है, तो पूरे दुनिया में 40 ये एटॉमिक मास सिर्फ कैल्शियम का है। ओके, और वो CaOH फॉर्म करता है। और कौन सा गैस लिबरेट करता है? गैस जिंक, विच कैचेस द फायर। ओके, तो आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। अगर हमने एक्स आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों, तो कैल्शियम है एक्स। उसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो वाई है। ओके, और हाइड्रोजन गैस क्या है? जेड। तो एक्स क्या हो गया? कैल्शियम। वाई क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जेड क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा बच्चों। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेस्ट सीरीज का सेट ए का बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, अब MCQ में क्वेश्चन नंबर 8,
After performing the experiment, Sunita draw the following diagram, but forgot the label. Okay. अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है बच्चों ए और बी को. ओके. अब द पोर्शन विच वॉज कवर्ड विद द लाइट स्क्रीन, अगर ये पोर्शन लाइट स्क्रीन से कवर्ड है तो यहां पे लाइट नहीं गया. ओके. एंड यहां पे स्टार्च प्रोड्यूस ही नहीं होगा. बट ये बाकी का पोर्शन देख रहे हैं बच्चों, ये कवर्ड नहीं है, यानी इस पोर्शन में स्टार्च प्रोड्यूस होगा. ओके. तो उन्होंने आपको ऑब्जर्वेशन नहीं पूछा है, तो हम ये ब्लू कलर की तरफ भागेंगे, हम डायरेक्ट इधर जाएंगे. ए ऑप्शन, ए में स्टार्च फॉर्म होगा और बी में नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? ए. दिस इज द करेक्ट. ओके. बिल्कुल उन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह कहीं नहीं बोला है. हाँ, अगर वो आयोडीन सॉल्यूशन की बात करते तो हम इधर मुंह होते कलर के तरफ. ओके. तो इसका आंसर ए होगा. 9 देखो बच्चों. इन द गिवन एक्सपेरिमेंट water will rise in the tube because. ओके. अब यहां पे इस ट्यूब में वाटर का लेवल क्यों बढ़ता है? ओके. तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है. ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन द फ्लास्क विल बी टेकन अप बाय द जर्मिनेटिंग सीड. तो बच्चों सीड तो यहां पे है. ओके. इसका और इसका तो कुछ सवाल ही नहीं होता. ओके. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. बी, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द जर्मिनेटिंग सीड विल बी एब्सॉर्ब बाय द KOH. यस, यहां पे ये KOH जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है. ओके. दैट्स व्हाई the water level get a what rise, because here is in the photosynthesis the water is a byproduct. Okay. तो KOH इसीलिए इस्तेमाल होता है कि वो CO2 को क्या करे? एब्सॉर्ब करे. ओके. तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. अब बाकी के ऑप्शन अगर देखेंगे तो वो मिल नहीं खाते. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट ही नहीं होगा ना, क्योंकि KOH है वहां पे. देन मॉइस्चर इन द जर्मिनेटिंग सीड विल रीच द वाटर इन द बीकर थ्रू द डिलीवर. ये वाटर तो जा ही नहीं सकता. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. 10 देखो बच्चों. 2 pea plant, one with the round seed, okay, round green seed, and another with the wrinkled yellow seed, produce the F1 progeny. This is a round and yellow seed. When they are self-pollinated, F2 progeny will have a new combination of characters. Okay. तो यहां पे हमको नए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर मिलते हैं. ओके. अब यहां पे कौन सा नया कॉम्बिनेशन मिलेगा? तो हमको अब राउंड ग्रीन ये पैरेंटल. ओके. बाद में अनादर दैट इज अ रिंकल येलो, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन. एंड दिस इज अ राउंड येलो इज अनादर पैरेंटल कॉम्बिनेशन. ओके. तो यहां पे कौन सा ये राउंड येलो कैरेक्टर नया मिल रहा है. ओके. राउंड ग्रीन तो पैरेंटल है, ये नहीं हो सकता. रिंकल येलो वो भी ऊपर पैरेंटल में, ये भी नहीं हो सकता. हाँ, रिंकल ग्रीन ये कैरेक्टर हो सकता है. इसलिए ऑप्शन बी दैट इज 1 and 4 is a correct answer. Okay. Which is the correct sequence of the component of the reflex arc? तो बच्चों reflex arc पता है, the pathway on which the reflex action takes place. Okay. तो हमको मालूम है receptor to sensory neuron to spinal cord to motor neuron and muscle.
यही पाथवे है। तो यहाँ देखते हैं रिसेप्टर टू मसल, ये रॉन्ग है। रिसेप्टर टू मोटर न्यूरॉन रॉन्ग है। रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड रॉन्ग है। रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन इज करेक्ट, देन स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 12th, in a figure part A, B and C are sequentially, तो बच्चों ये डाइकॉट सीड है। ओके, अब ये जो ए है ना, दिस इज अ प्लूमल, बी इज अ कोटियोलिडॉन एंड सी इज अ रेडिकल। तो ऑप्शन सी देखो, प्लूमल, कोटियोलिडॉन एंड रेडिकल। ओके, अब 18th क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। देखो बच्चों, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ with or without presence of recessive trait। ओके, कभी कभी उसके साथ रेसेसिव ट्रेट रहता भी है। ओके, रहेगा तो हाइब्रिड रहेगा। ओके, और नहीं रहता तो प्योर रहेगा। ओके, एंड रीजन देखो, यानी assertion ट्रू है। रेसेसिव ट्रेट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। रीजन ठीक है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहां पे आंसर बी होगा बच्चों। 19, यहां पे देखो बच्चों, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, assertion ट्रू है। रीजन देखो, इट हैज नो रोल इन द सिक्रीशन ऑफ यूरिन, ये तो फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सी, दैट इज अ assertion is true but the reason is what? False। ओके, अब ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। What is the difference between the manner in which the movement in the sensitive plant and movement of our legs? बच्चों दोनों अलग अलग है। अब सेंसिटिव प्लांट तो नास्टिक मूवमेंट हो गया। ओके, दिस इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स विच फोल्ड अप एंड ड्रॉप, और ये किस वजह से होता है? बाय चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, बट जब हमारे पैरों का मसल का मूवमेंट होता है, ओके, तो देयर इज अ व्हाट? सेरेबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, और वो नर्वस कंट्रोल में जाएगा। ओके, या आप यहां पे ये भी लिख सकते बच्चों कि मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स इज कंट्रोल्ड बाय द चेंज इन द व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, वो प्रोटीन फॉर्म होता है, उसके वजह से वो मसल्स मूव होते हैं, ये भी पार्ट आ सकता है। बट ये दोनों जो है, इसको अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, समझ में। 23 देखो बच्चों, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन जब भी होता है तो इट कॉजेस एनीमिया। ओके, अब एनीमिया में क्या होता है बच्चों? देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन। ओके, दैट्स व्हाई पर्सन गेट टायर्ड एंड लॉस ऑफ व्हाट? वेट। ओके, then 24, compare the functioning of alveoli in lungs and nephron in the kidney। ओके, अब कंपेयर करना है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोनों जो है, ओके, they are possessing the network of what? Blood capillaries, but alveoli is important for exchange of gases। Okay, but the nephron purify the blood। Okay, समझ में? And both are the structural and functional unit of the respective organs। Okay, अब 26 देखो बच्चों, give any 2 ways in which the biodegradable substances would affect the environment। ओके, अब अफेक्ट कैसे होता है? तो जनरली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो दे प्रोड्यूसेस द फाउल स्मेल। ओके, एंड
इट गेट अ व्हाट स्प्रेड। ओके, और उसके वजह से क्या होते हैं कि जो जर्म्स वगैरह है, पैथोजेंस है, वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और उसके वजह से अलग अलग बीमारियां होना चालू हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट में आ जाएंगे। ओके, अब 29 देखो बच्चों, गिव रीजन है। Oxygenated and deoxygenated blood are separated in the heart of mammals. अब ये क्यों है? क्योंकि मैमल आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और इसमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर डिपेंड होता है। इसी वजह से हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब हो सकता है? जब दोनों ब्लड क्या रहे? सेपरेट। अब देखो, वेंट्रिकल आर द थिक वॉल, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के तरफ लेके जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के तरफ जाते हैं। इसीलिए वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड दैट्स व्हाई दे शुड बी थिक वॉल। Herbivorous have a long small intestine as compared to carnivorous। तो जब भी हर्बिवोरस है बच्चों, तो हर्बिवोरस क्या करेंगे? प्लांट फूड लेते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए समय ज्यादा लगता है। ओके, एज कंपेयर टू द कार्निवोरस, क्योंकि कार्निवोरस तो फ्लेश खाते हैं। ओके, मीट खाते हैं या किसी एनिमल को खाते हैं, वहां सेलुलोज नहीं होता, इसीलिए उसको समय जो है कम लग जाता है, बट हर्बिवोरस को ज्यादा लगता है। अब 29 का और है ये। ओके, राइट द रिएक्शन दैट ऑकर व्हेन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन एनारोबिकली इन द ईस्ट। तो सबसे पहले बच्चों ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज गेट ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। ओके, दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। और बाद में पायरुवेट जो है, ये एनारोबिकली जब जाएगा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ओनली 2 एटीपी इज प्रोड्यूस। तो ये सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना है। राइट द मैकेनिज्म बाय विच द फिश ब्रीथ इन वाटर। ओके, अब फिश क्या करते हैं बच्चों, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ये 2 और 3 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, because they take the water oxygen which is dissolved in water। इसीलिए वो माउथ से ऑक्सीजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और उसको फोर्सफुली कहाँ पास करेंगे बच्चों? गिल्स में। ओके, और गिल्स से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कौन लेता है? ब्लड, और उसको बॉडी में क्या करते हैं? सर्क्यूलेट। इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म अलग है, यानी माउथ से गिल्स, देन गिल्स से हार्ट। ओके, एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। नेम द balloon like structure present in the lungs। No doubt it is alveoli। List its two functions। So they contain the extensive network of the blood vessel which exchange the gases and increase the surface area। ओके, सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। ओके, तो ये दो फंक्शंस। अब देखो बच्चों 33 गिव रीजन ही है। ओके, ये भी 3 मार्क्स है। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4 और मैक्सिमम 5 स्टेप्स। तो बच्चों हमको 10% लॉ मालूम है। ओके, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, ओके, the food get transfer from one trophic level to another trophic level by only 10%। तो बहुत सिंपल है, लॉन्गर द फूड चेन लेस विल बी द एनर्जी, बट शॉर्टर द फूड चेन मोर विल बी द एनर्जी। ये इकोसिस्टम का रूल है, इसीलिए फूड चेन में नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो कम होते हैं। अब सेकंड, इन अ स्ट्रेटोस्फीयर ozone shield normally has a steady concentration of ozone। बच्चों
ये ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करते हैं? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, और ये कंटिन्यूअस जनरेट होना चाहिए ओजोन। ओके, इसीलिए कौन लगेगा हमको? ऑक्सीजन। ओके, तो जब ऑक्सीजन जनरेट होगा, ओके, तो ही ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये जो स्टेडी स्टेट है ना, इसको मेंटेन रखने के लिए यानी ओजोनोस्फीयर को मेंटेन रखने के लिए हमको कंटिन्यूअस क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन से ही क्या फॉर्म होता है? ओजोन, बिकॉज ओजोन इज अल्ट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन अमॉन्ग द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी जो ओजोन को डिप्लीट, तो कौन है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हार्मफुल है, नो डाउट, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो ये एक्टिव क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ Cl और ClO रेडिकल प्रोड्यूस करता है बच्चों। ओके, और ये निगेटिव रेडिकल्स होते हैं। ओके, अब ये निगेटिव रेडिकल क्या करते हैं? चेन रिएक्शन करते हैं। ओके, समझ में? अगेन दे प्रोड्यूसेस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, एंड डिस्ट्रॉय द व्हाट? ओजोन बाय कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? ऑक्सीजन। यानी ये रेडिकल क्या करते? O3 को, ओके, O2 में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसीलिए ये डेंजरस फैक्टर है। ओके, तो देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ अ व्हाट? ओजोन लेयर। अब देखो बच्चों 35, लिस्ट द टू एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, ओवर असेक्सुअल। तो हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? वेरिएशन। ओके, एंड गिव्स द व्हाट? ऑफस्प्रिंग। ओके, और उसी के वजह से नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो सकता है, यानी नई स्पीशीज फॉर्म हो सकती है, लीड्स टू द इवोल्यूशन। ओके, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज अ ग्रेटर एडवांटेज ओवर द असेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। नेम द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में तो मल्टीपल फ्यूजन होता है, और प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजनरेशन। सी देखो, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स? तो बच्चों हमने पढ़ा है कि इट इज अ सिंपल एंड फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एक स्पोरेंजियम में 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, that's why they can easily disperse to the wind, water and animals. अब list the two contraceptive method and state two benefits. अब contraceptive method, तो barrier method बच्चों, and using the contraceptive what? Pills. Okay, अब इसके benefits क्या है? ये not only protected the sexual transmitted diseases but also maintaining the sufficient gap between the two successive birth. ओके, समझ में? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका और बहुत इजी है। नेम द पार्ट लेबल एज ए बी सी डी। तो बच्चों ए कौन है? पोलन ग्रेन। बी कौन है? दैट इज अ स्टिग्मा। सी कौन है बच्चों? पोलन ट्यूब। और डी कौन है? दैट इज अ ओव्यूल। ओके, व्हाट इज पॉलिनेशन? Okay, the transfer of pollen grains from anther to stigma, okay, is a pollination. अब इसके significance, what is its significance? It brings the male and female gamete for fertilization, okay, और generally जब क्रॉस pollination होता है ना, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? वेरिएशन। ओके, एंड दिस वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब तीसरा सवाल क्या था? हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फ्लावर? तो फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि दो मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट फॉर्म करता है, उससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है।
और दूसरा मेल गैमेट ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। एंड हियर इज द फोर्थ, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू सीड एंड फ्रूट्स। तो ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सीड, एंड ओवरी डेवलप इनटू व्हाट, फ्रूट्स। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब ये 38 बच्चों केस स्टडी का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों, डायग्राम से ही दिखता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी राउंड येलो सीड एंड हाउ मेनी राउंड ग्रीन सीड विल बी प्रोड्यूस। तो बच्चों हमको रेशो पता है 9:3:3:1। ओके, तो राउंड येलो कितने होते हैं, 9, और राउंड ग्रीन कितने होते हैं, 3। तो रेशो से हम फाइंड करेंगे। राइट द जेनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, 1:1, 2:4:2, 1:1। ओके, समझ में सब। तो इस तरह से ये जेनोटिपिक रेशियो सिर्फ लिखना है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों दिमाग में पक्का रखना, डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो two or more contrasting traits are crossed, the gametes are always independently what, assorted. Okay, here is, अब उसका और give difference between the phenotype and genotype। तो जो फिजिकली एक्सप्रेस होता है और हमको दिखाई देता है वो फेनोटाइप, और जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रेट इज अ जेनोटाइप। जो फेनोटाइप है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। ओके, समझ में। और जो जेनोटाइप है उसका अफेक्ट हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पेपर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।